dealing with long run average cost curve, LAC. Long run average cost curve, LAC. Long run average cost curve is also called as planning curve because we plan the production and we plan the plant during that period. Therefore, planning curve, it is also called as envelope curve. Why it is called as envelope curve? अभी तक मैं उस पर आया नहीं हूं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, आज अपना ये खत्म होना चाहिए. So now when I say when I say right, the long run, it means all factors are variable and there are only variable cost. There are only and only variable cost. And the component of the long run costs is just a variable cost, and long run average cost is also long run variable cost का average. ठीक है, जो भी कॉस्ट रहेगी लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, उससे कुछ अलग नहीं हो सकता. मैंने एग्जाम रेड कल हमने डिस्कस किया how to select a given plant in the long run. So we will select that plant. We will select that plant which will give you lowest possible cost. जो सबसे कम कॉस्ट देगा आपको. फर्स्ट सिलेक्ट द आउटपुट, आपको डिसाइड करना है कौन सा आउटपुट चाहिए, एंड फॉर दैट आउटपुट सिलेक्ट द प्लांट which will help you to produce that output with the lowest possible cost. There are multiples of plants which are available in the market. You can buy any one of them, but a rational producer will purchase or install that plant which will help you to reduce the cost. उस आउटपुट की कॉस्ट क्या रहे, कम रहे. Total cost of the output should be less for a given output, or average cost should be less. ठीक है. So take another example, इसमें मैं वैल्यूज भी देता हूं. X axis is the output produced, Y axis is average cost in rupees, this is short run cost curve 1, short run average cost curve 2, short run average cost 3, representing the three plants having different capacities. SSC1 is a plant with a lower capacity, SSC2 is a plant with a like medium capacity, and SSC3 is a plant with a larger capacity between them. You have to produce 10,000 units. This is A, Q1. If you have to produce some different level of output, OQ2 output, which is suppose 30,000, then $50,000, $70,000, okay, 1 lakh units.
ठीक है। ए बी इज, ए बी बोल रहा हूं, ए क्यू 1, बी क्यू 2, सी क्यू 2, देन डी क्यू 3, देन E Q3, F Q4, G Q4, H Q5. Suppose this is 8 rupees, this is 5 rupees, this is 10 rupees, 10 rupees, 5 rupees, this is 9 rupees, 6, GQ4 is 6, and HQ4 is 9. ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल गिव द क्वेश्चंस। डायग्राम निकालो आपके इसमें, चलो जल्दी करो, डायग्राम निकालो। मेक इट फास्ट। Okay, take the questions now. First, cost of producing, find out cost of producing the given outputs like OQ1, OQ1, output OQ1, OQ1 using SSC1, which is the plant having the cost curve SSC1, OQ2 output using SSC1 and SSC2, OQ3 output using SSC1 and SSC2 again,
OQ4 output 3 and 4, sorry, 2 and 3, SSC2 and SSC3 and OQ5 output using SSC3. मैंने जानबूझ के ऐसे आपको निकालने को बोला है, ठीक है? देखो, you have to find out total cost, और फिर हम उसमें से एक प्लान चूज करेंगे. OQ आउटपुट यूजिंग SSC1. कोई मुझे बोलेगा क्या? OQ1 आउटपुट यूजिंग SSC1. एनीवन? कितनी कॉस्ट रहेगी? करो पिंग. OQ आउटपुट यूजिंग SSC1. एनीवन? चलो जल्दी. You have to find out the total cost. पिंग करो, चलो जल्दी. OQ1 आउटपुट यूजिंग SSC1. अच्छा, 30,000. कैसे 30,000? You have to produce OQ1 आउटपुट. चलो जल्दी टाइप करो, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? Make it fast. OQ1 आउटपुट यूजिंग SSC1. आपको क्या करना होगा? परपेंडिकुलर डालना होगा एट OQ1 आउटपुट, बराबर ना? 10,000 इज रॉन्ग. 10,000 इज द आउटपुट. मुझे कॉस्ट चाहिए. दिस इज माय आउटपुट, OQ1 आउटपुट. 10,000 is a, what is my total cost? My average cost multiplied by output Q. Average cost multiplied by total output. So I know my total output. I know my total output is 10,000. OQ1 is 10,000 multiplied by उसके एवरेज कॉस्ट क्या है? तो 10,000 की एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है, तो यू हैव टू राइट एवरेज कॉस्ट कर से 10,000 पे परपेंडिकुलर डालना होगा. इट इज AQ1 and AQ1 is 8. So average cost of producing 10,000 units is 8. So what is your total cost? 80. बराबर? Then if you have to produce OQ2 output using SSC1 and SSC2, मुझे पहले बोलो SSC1 की कितनी कॉस्ट रहेगी एंड SSC2 की कितनी कॉस्ट रहेगी? बोलो. SSC1 की कितनी रहेगी और SSC2 की कितनी रहेगी? If you produce OQ2 output using SSC1 or SSC2, what do you think? What will be your total cost? So जल्दी. प्रोड्यूसिंग OQ2 आउटपुट यूजिंग SSC1 और SSC2. अगर SSC1 से प्रोड्यूस करते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी? अगर SSC2 से प्रोड्यूस करते हो तो कितनी लगेगी? अच्छा, SSC1 से प्रोड्यूस करोगे तो कितनी लगेगी? 15 लाख. कैसे? लेट मी चेक. आपको कॉस्ट ढूंढनी है. सो आउटपुट OQ2 आउटपुट इज 30,000. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 की कॉस्ट ढूंढो. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग यूजिंग SSC1, तो SSC1 की कॉस्ट कितनी है? SSC1 के नीचे which is BQ2 which is 5, 1,50,000. Perfect. And if the same output is produced using SSC3, sorry SSC2, तो SSC2 की कॉस्ट कितनी होगी? SSC2 के नीचे देखो, CQ3 is 10, 3 lakhs. So which will you choose? The same output can be produced with rupees 1,50,000. Same output can be produced with rupees 1,50,000 and 3 lakhs. Which is a better? SSC1 is a better. Because if I have to produce OQ2 output, 30,000 output in my diagram, it is better to use SSC1 and not SSC2. समझा? Next, if I have to produce OQ3 output using SSC2 and SSC1, पहले SSC1 का बोलो, OQ3 output using SSC1.
व्हाट यू थिंक? SSC1 से प्रोड्यूस करोगे तो कितना लगेगा? OQ3 आउटपुट कितना लगेगा? OQ3 आउटपुट की कॉस्ट चाहिए ना, तो कॉस्ट कर्व के नीचे परपेंडिकुलर डालो आउटपुट पे. So you know output is 30,000. OQ3 30,000 multiply by 30,000 multiply by SSC3 की कॉस्ट कितनी है और SSC2 की कॉस्ट कितनी, सॉरी SSC1 की कॉस्ट कितनी है और SSC2 की कॉस्ट कितनी? SSC1 की कॉस्ट SSC1 के नीचे देखो, दिस इज कॉस्ट ऑफ SSC1 DQ3 which is 10 rupees per unit, 3 lakhs. बराबर. And if you start using SSC2, the cost per unit of producing 50,000 units is EQ3. EQ3 is 5. 1,50,000. So to produce OQ3 unit, which is a better plant, SSC1 or SSC2? जहां पे कॉस्ट कम रहेगी, SSC2 is a better plant. Then, if you have to produce OQ4 output, बोलो OQ4 आउटपुट का आंसर दे दो, चलो जल्दी करो. OQ4 इसके आउटपुट दे दो. जल्दी करो. If you have to produce OQ4 output using SSC2 और using SSC3, तो बोलो कितना आएगा? अच्छा 4,20,000 आ रहा है क्या? लेट मी चेक. सो आपको क्या करना होगा, आपको परपेंडिकुलर डालना होगा कॉस्ट कर्व से आउटपुट पे. सो परपेंडिकुलर की लेंथ एवरेज कॉस्ट होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ एवरेज कॉस्ट होगी, एंड ओरिजिन से परपेंडिकुलर तक, ओरिजिन से परपेंडिकुलर तक वो आपका आउटपुट होगा. समझा? सो देखते हैं. सो इफ आई प्रोड्यूस 70,000 यूनिट्स, if I produce 70,000 units using SSC2, so SSC2 की कॉस्ट है, SSC2 के नीचे देखो परपेंडिकुलर FQ4, FQ49, your total cost will be 6,30,000. And if you use SSC3, तो SSC3 के नीचे देखो, या सॉरी वो SSC3 की थी, ये SSC3 की थी 9. SSC3 के नीचे देखा ना मैंने, SSC2 के नीचे देखो GQ4, GQ4 is 6 rupees. So cost is 4,20,000, which is a better. If you have to produce 70,000 units, if you use SSC2, your cost will be 4,20,000 total cost. And if you use SSC3, your total cost will be 6,30,000, which is a better 4,20,000. And if you want to produce OQ5 output using SSC3, the cost is, जिस कर्व से हमें ढूंढना है उसके नीचे देखो परपेंडिकुलर डालो. So HQ5 is a cost. HQ5 is a cost per unit, which is 9 multiplied by OQ5 is a quantity 1 lakh. 1 lakh multiplied by 9. Is it 9 lakhs? Yes. OQ3 is 50,000. I have taken 30,000. Okay, sorry. OQ3 ना, हाँ मैंने वो कॉपी पेस्ट वैसे किया होगा. ठीक है. 50, so ये 5 lakhs आएगा. प्लांट वही रहेगा, बट this will be 5 lakhs, this will be 2,50,000. ठीक है, आगे क्लियर है? आगे देखते हैं. सो व्हाट यू अंडरस्टूड, फॉर एनी आउटपुट, कोई भी आउटपुट उठाओ, उसके लिए एक ऐसा प्लांट होगा, अगर आप वो यूज करते हो तो आपकी कॉस्ट सबसे मिनिमम रहेगी. हर आउटपुट के लिए अपना अपना एक सिंगल प्लांट होगा. फॉर ईच आउटपुट इज एक्स एक्सिस, output is x axis. Every output on x axis means
एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स वन लेवल ऑफ आउटपुट. कोई भी ले लो, अब ये भी एक आउटपुट रहेगा, ये भी एक आउटपुट रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी, उसके अंदर भी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स वन लेवल ऑफ आउटपुट and that output can be produced using such a plant which will give you lowest cost. So there are millions of such outputs. X axis पे millions of points रहेंगे. There will be millions of such outputs and each output will be represented by one plant. एक ऐसा plant जो क्या करेगा, वो output आपको lowest cost पे देगा. So there are millions of the outputs represented by millions of the plants. There are millions of the outputs represented by millions of the plants. Every output has its own plant which gives lowest cost. फिर दूसरा आउटपुट आएगा, उसका दूसरा प्लांट रहेगा जो उसकी लोएस्ट कॉस्ट देगा. कोई तीसरा आउटपुट ले लो, उसके लिए अलग प्लांट रहेगा जो उसकी लोएस्ट कॉस्ट देगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट? सो देयर आर मिलियंस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज. हमें उनको स्टडी करना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में. ध्यान देना. Therefore, my next question, before we enter into another concept, SSC 1, SSC 2, SSC 3, SSC 4 and SSC 5. OQ1, OQ2, OQ3 and OQ4. This is cost per unit, average cost now per unit. This is output. You have to tell me, this is lowest point of SSC 1, this is lowest point of SSC 2, lowest point of SSC 3, lowest point of SSC 4, lowest point of SSC 5. ठीक है? सबसे पहले मुझे बोलो, सबसे पहले आउटपुट OQ1 तक which plant is to be chosen? SSC 1 तक कौन सा प्लांट चूज करना है? OQ1 आउटपुट तक should I go for SSC 1 or SSC 2 or any other plant? OQ आउटपुट तक, write your answer. चलो जल्दी. SSC 1 तक, सॉरी OQ1 तक कौन सा आउटपुट? OQ1 तक SSC 1. Any output in this given, suppose there are only 5 plants. Actually हम इसे नहीं मानते, हम मानते there are millions of the plants. There are millions of the output and each output can be produced at the lowest possible cost using that plant. So there are millions of the outputs represented by millions of such cost curves. But मैंने माना है there are only 5 feasible और मैं आपको concept समझा रहा हूँ. So up to output OQ1, which plant is a better? Right? SSC 1 is a better. From output OQ1 to OQ2, which plant is better? इस बीच में कौन सा प्लांट चाहिए? What do you think? OQ1 से OQ2 तक SSC 2. OQ2 से OQ3 तक कौन सा प्लांट चाहिए? SSC 3. OQ4 से सॉरी OQ3 से OQ4 SSC 4 एंड OQ5 से आगे तक SSC 5. ध्यान देना. अप टू इंटरसेक्शन lower plant, lower capacity plant. After intersection, higher capacity plant up to next intersection. फिर next intersection पे नया वाला plant up to next intersection. फिर नया वाला plant up to next intersection, नया वाला plant. ठीक है? So any output up to OQ1, suppose OQ1 is 1 lakh, OQ2 is 2 lakhs, OQ3 is 3 lakhs, 4 lakhs, like that.
if you have to produce any output up to 1 lakh, you should choose SSC1, the plant having the cost curve SSC1. Every plant will have some cost. So उसकी एक cost curve रहेगी, average cost curve रहेगी, short run average cost curve, SSC. So up to output OQ1 or 1 lakh units, I should choose a plant which will have its cost curve SSC1. If I have to produce between 1 lakhs to 2 lakhs, OQ1 से OQ2 के बीच में, I will choose a plant having cost curve SSC2. Between the output OQ2 to OQ3, I will choose the output, the plant providing the output between that level, and its cost should be SSC3, like that. Are you getting my point? Now my next question, if I'm producing OM output and if I'm producing ON output, मुझे बोलो OM output, एक सेकंड ना, यहां पे लिखता हूं, up to output OQ1, SSC1 plant having cost curve SSC1, ठीक है? OM output पे SSC1 is ON output पे OMNP. ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना. Up to OQ1 output, I have chosen SSC1, plant having the cost curve SSC1. अगर मैं ON आउटपुट कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर SSC1 ही फॉलो करो, ऑब्वियसली. बट मुझे बोलो, अगर मैं ON आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो मैं प्लांट यूज कर रहा हूं SSC1 कॉस्ट वाला प्लांट, इज इट ओवर यूटिलाइज्ड, इट इज ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड, और इट इज अंडर यूटिलाइज्ड? यू हैव टू टेल मी. मैंने SSC1 सिलेक्ट किया, OM आउटपुट के लिए मैंने SSC1 सिलेक्ट किया, मानता हूं मैं, बिकॉज इट इज राइट दैट. अगर मैं SSC1 लेता हूं तो दैट विल गिव मी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. बट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे OQ आउटपुट तक SSC1 वाला प्लान चाहिए, मैंने इंस्टॉल किया, एंड नाउ मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया. मुझे OQ1 आउटपुट अचीव करना है, मुझे OQ1 आउटपुट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अचीव करना है. नाउ आई एम एट OM आउटपुट, अभी मैं OM आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं. ऑब्वियसली मैं कौन सा प्लांट यूज करके प्रोड्यूस कर रहा हूं? द प्लांट हैविंग कॉस्ट कर्व SSC1. तो आप मुझे बोलो, वो प्लांट ओवर यूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, या ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड है? व्हाट डू यू थिंक? यस प्लीज. इट इज अंडर यूटिलाइज्ड. व्हाई? एक बार आपने आपका प्लान डिसाइड किया, उसकी मिनिमम पॉइंट देखो, दिस इज मिनिमम पॉइंट. सो OM आउटपुट, optimum output of that plant, optimum output of SSC1 is ON. ON is the optimum output of SSC1. Similarly, ये जो भी आउटपुट रहेगा, that output is the optimum output of SSC2. ये जो भी आउटपुट रहेगा, that output is the optimum output of SSC3. ये जो भी आउटपुट रहेगा, नीचे देखो उसके, between OQ3 to OQ4, that output is the optimum output of SSC3. Sorry, SSC4. And ये जो आउटपुट रहेगा, that will be optimum output of SSC5. SSC5, ठीक है? So अब मैं देख रहा हूं, हमने डिसाइड किया कि हमें OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस करना है, OQ1 तक प्रोड्यूस करना है in long run, and therefore we decided to install a plant having its cost curve SSC1. ठीक है? Because मेरा आउटपुट कम है, I should not go for SSC5, SSC4. हायर आउटपुट, हायर कैपेसिटी के प्लांट लोअर आउटपुट के लिए चूज ही मत करो, they will unnecessarily increase your cost. So हमने SSC1 डिसाइड किया, तो हमने इंस्टॉल किया SSC1, एंड हम धीरे धीरे OQ1 तक जाएंगे, OQ1 तक जाएंगे, ठीक है?
if I am at OM output, you can see this output is to the left of minimum point of the SSC. If I am producing to the left of minimum point of, right, left of minimum point, or if I'm on downward sloping portion of the SSC, it means that given plant is underutilized. So if I'm producing OM output, I am saying SSC1 is underutilized. If I'm exactly producing ON output, it is fully utilized. In the short run, at that output, ON output, SSC1 is fully utilized. And if I'm producing OP output, I'm working on a level which is right of the minimum point, yeah, upward portion of the minimum point of that given SSC. So therefore I will say it is overutilized. Overutilized. मुझे बोलो which is a better? Obviously fully utilized is always better. Why? Because that gives you minimum possible cost. So right, अगर मैं ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, सपोज हम ये वाला लेते हैं, सपोज दिस इज A, B, C. आप मुझे बोलो बिटवीन, मैं एक थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा हूं, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा. OQ2 आउटपुट to OQ3 output. You will go for which plant? SSC3. आपको लगा कि यार मेरा आउटपुट OQ3 आउटपुट रह सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपने OQ3 आउटपुट OQ2 से ज्यादा रहेगा और OQ3 तक रहेगा. आपका ये प्लान है, ये फ्यूचर प्लान है. अकॉर्डिंगली आपने SSC3, SA3, ठीक है, SSC3 कॉस्कर वाला प्लांट आपने इंस्टॉल किया आपके इधर. तो आपको अचीव करना है OQ3 आउटपुट. एंड आप जब अचीव करना स्टार्ट किया, यू आर अचीव्ड OQ1 आउटपुट. तो मुझे बोलो OQ1 आउटपुट पे, नहीं, OA आउटपुट, OA आउटपुट, OB आउटपुट एंड OC आउटपुट, जो आपने प्लान सिलेक्ट किया SSC3, वो क्या है? इज इट अंडर यूटिलाइज्ड, इज ओवर यूटिलाइज्ड और फुल यूटिलाइज्ड? चलो बोलो OA आउटपुट पे SSC3. पहले SSC3 क्यों लिया ये समझ में आना चाहिए. Why I went for SSC3, ये पहले ये सोचो क्यों SSC3, एंड फिर सोचो वो फुल यूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड है या ओवर यूटिलाइज्ड है. अब मुझे बोलो OA आउटपुट अगर आप SSC3 लेके प्रोड्यूस कर रहे हो, OA आउटपुट अगर आप SSC3 लेके प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हो या अंडर यूटिलाइज कर रहे हो या फुल यूटिलाइज्ड है? टाइप मी द आंसर. बोलो OA आउटपुट के लिए क्या है? OA आउटपुट इज अंडर यूटिलाइज्ड. परफेक्ट, is underutilized because OA output falls to the left of minimum point of that curve. SSC curve के minimum point के लेफ्ट है, या it is on a downward sloping portion of that curve, इसलिए उसको हम बोलते हैं underutilized. OB आउटपुट क्या है? SSC3, अगर आप SSC3 पे OB आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप मुझे बोलो it is what? Fully utilized because it is minimum point. And if I am producing OC output using SSC3 चूज करना होगा OC के लिए, ठीक है. OC मतलब ओरिजिन से देखना होता है, ठीक है. अगर हम OC आउटपुट SSC3 लेके यूज कर रहे हैं, तो I am working on a upwards portion of the SSC. So I have
ओवर यूटिलाइज रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहला टास्क क्या है? चूज द प्लांट, एंड देन सेकंड टास्क, यूटिलाइज दैट प्लांट फुल्ली, ट्राई टू यूटिलाइज दैट प्लांट फुल्ली। अब ओसी में आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, कभी ना कभी हमें प्लांट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। सो फर्स्ट टारगेट इज चूज द प्लांट which gives you lowest possible cost, and the second target is, right, try to be on minimum point of that plant, ठीक है। अब this is one concept, how to choose the plant and then identify whether that plant is fully utilized, underutilized or overutilized, ठीक है। my second concept, फिर हम इन कंसेप्ट को एक साथ लेके आएंगे। another example, डायग्राम निकालना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। SSC4 एंड SSC5 दिया मैंने डायग्राम में, ठीक है। दिस इज O Q, ठीक है। दिस इज OQ1 आउटपुट, दिस इज OQ2 आउटपुट, ठीक है। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इफ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग OQ1 आउटपुट, प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग OQ1 आउटपुट, प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग OQ1 आउटपुट एंड यूजिंग, हमारे एग्जांपल में SSC4 लिया है ना मैंने, SSC4 प्लांट, plant having cost score SSC4 using SSC4, plant having cost score SSC4, बराबर। the plant is, the SSC4 plant is, बोलो, अगर हम OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग ऑन ए पॉइंट ए ऑफ SSC4, वी आर वर्किंग ऑन ए पॉइंट ए ऑफ द SSC4, बराबर, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट स्कोर 4। आप मुझे बोलो दैट पॉइंट ए ऑन SSC4 इज ओवर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड और फुल यूटिलाइज्ड, टाइप करो। द SSC4 प्लांट इज, यू हैव टू टेल मी, SSC4 प्लांट इज, OQ आउटपुट के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? OQ आउटपुट के लिए, OQ1 आउटपुट के लिए हम प्लांट 4 यूज कर रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन पॉइंट ए ऑफ दैट प्लांट, वी आर वर्किंग ऑन पॉइंट ए ऑफ दैट प्लांट। तो वो प्लांट SSC4 ओवर यूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड या फुल यूटिलाइज्ड है? इट इज अंडर यूटिलाइज्ड, गुड, इज अंडर यूटिलाइज्ड, बराबर। अच्छा, सो अगर प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड है, द प्लांट इज अंडर यूटिलाइज्ड, देयरफॉर प्रोड्यूसर, मैं टेंडेंसी समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना, प्रोड्यूसर will try to, right, utilize the plant
plant 4, right, fully, therefore, अच्छा मुझे बोलो प्लांट 4 फुल्ली कहां पे यूटिलाइज होगा? प्लांट 4 कौन से पॉइंट पे फुल यूटिलाइज होगा? कौन से पॉइंट पे वो फुल यूटिलाइज होगा? ए बी सी तीनों में से कौन से पॉइंट पे वो फुल यूटिलाइज? प्लांट 4 बोल रहा हूं, प्लांट 4 कौन से पॉइंट पे? ऑब्वियसली पॉइंट बी पे, because point B is the lowest point of that curve, right? He will try to move from point A to point B on same SSC. So he will try to move from point A to point B on same SSC. Point plant 4 SSC 4 को फुल यूटिलाइज करने के चक्कर में प्रोड्यूसर विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी की तरफ जाएगा वो। क्लियर है यहां तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो मूव करेगा, ए से बी की तरफ, बराबर, एंड विल अचीव आउटपुट इक्वल टू आउटपुट ऑफ OQ2 लेवल। एंड जैसे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा तो OQ2 लेवल का आउटपुट बनेगा, बराबर, OQ2 लेवल का आउटपुट बनेगा। नेक्स्ट, सो दिस इज बाय trying to utilize the plant fully, by trying to utilize the plant fully, he will move from point A to B on the same curve. Try to understand, in the short run you can move on the same curve, same plant, you can use it in a better way or you can reduce the use. अगर underutilized है उसको fully utilize करो, अगर overutilized है तो उसको थोड़ा कम करके fully utilize पे आ जाओ, your cost will reduce, per unit cost will reduce. So यहाँ पे वो plant underutilized है, in order to utilize it fully he will move from point A to B, मतलब OQ1 output से he will try to produce OQ2 output जहाँ पे SSC4 is fully utilized. However, OQ4 output can also be produced using SSC5. OQ output can also be produced, हमें OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना, तो OQ2 आउटपुट आप SSC4 यूज करके भी प्रोड्यूस कर सकते हो एंड SSC5 यूज करके भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। OQ2 आउटपुट आप दो प्लांट यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हो, SSC4 और SSC5, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग OQ2 output is lowest in plant 4 और 5. You have to tell me, अगर हमें OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस करना है, अगर हमें OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस करना है, which plant will give you lower cost or lowest cost? Will SSC4 वाला प्लांट will give you lowest cost और SSC5 वाला प्लांट will give you, मैं आपको बोलता हूं प्रोड्यूस OQ2 आउटपुट, तो आप मुझे बोलो अगर आपको OQ2 आउटपुट चाहिए तो आप SSC4 वाला यूज करोगे या SSC5 वाला यूज करोगे? मैं आपको पूछ रहा हूं। यस, SSC5, परफेक्ट। SSC5 will give you lower cost. Plant 5 that is SSC5. देखो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीवन अब ध्यान देना।
जब आप OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, यू आर ऑन SSC4 अंडर यूटिलाइज्ड पोजीशन. जब आपने आउटपुट इंक्रीज करना डिसाइड किया, क्यों आउटपुट इंक्रीज करना चाह रहे हो? बिकॉज यू वांट टू यूटिलाइज द प्लांट फुल्ली. आप बोलते हो मुझे इस प्लांट को फुल यूटिलाइज करना है, मतलब आप बोलते हो मैं उसके मिनिमम पॉइंट पे जाऊंगा. जब आप मिनिमम पॉइंट पे जाने का ट्राई करते हो, आउटपुट विल चेंज. एंड वही मिनिमम पॉइंट मतलब बी पॉइंट पे जाना चाहोगे SSC4 पे, द आउटपुट लेवल इंक्रीजेस टू OQ2. एंड यू कैन टू योर सरप्राइज, आप सोचोगे यार OQ2 आउटपुट प्लांट 5 लेके कम कॉस्ट में भी प्रोड्यूस हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव वन ऑप्शन, दिस इज वन ऑप्शन, moving from point A to B means using the same plant and and utilizing it. और another option, अगर ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, from moving point A to C. Therefore, producer has two options and everything is can be changed. ऐसे समझो, everything is a possible. डेली आप प्लान चेंज कर सकते हो, ऐसे भी मान के चलो. प्रोड्यूसर हैज टू ऑप्शंस to produce OQ2 output. That is, move on same curve from A to B. That is, use the same plant, and right, use the same plant. और दूसरा ऑप्शन, producer, right? दूसरा ऑप्शन, that is, move from A to C. That is, this is option 1, this is option 2. Move from point A to C, that is, use the or shift the plant. Shift the plant. बराबर? डोंट यू एग्री विथ मी? प्रोड्यूसर हैज टू ऑप्शन, ए से बी जाए OQ2 बन रहा है, ए से सी आ जाए OQ2 बन रहा है. सो या तो वो सेम प्लांट यूज करते रहो या चेंज द प्लांट एंड ऐसे समझो एवरीथिंग कैन बी चेंज. तो विच ऑप्शन? बिकॉज हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग रन में एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड. तो आप मुझे बोलो विच ऑप्शन विल यू चूज, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2? यू हैव टू टेल मी. एवरीथिंग इज अ वेरिएबल इन द लॉन्ग रन. सो ऑप्शन 1 भी कर सकते हो, ऑप्शन 2 भी कर सकते हो. यू कैन चेंज द, you can use the same plant or you can also change the plant. If you can't change the girl, change the girl. आपने सुना होगा, if you can't change the girl, change the girl. On similar basis, आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है यूज द सेम प्लांट और शिफ्ट द प्लांट. यस, ऑप्शन 2 परफेक्ट. ऑप्शन 2 में क्या हो जाएगा? यू विल शिफ्ट द प्लांट. सो आप जंप कर रहे हो, प्लांट 4 से प्लांट 5 के जंप कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लांट 4 से प्लांट 5 पे आप जंप करोगे, आउटपुट उतना ही रहेगा और कम कॉस्ट में होगा. देयरफॉर प्रोड्यूसर will decide to produce OQ2 output. Producer will decide to produce OQ2 output by shifting from plant 4, in my example, to plant 5. Are you getting my point or no? अरे समझा या नहीं समझा? So in long run,
प्रोड्यूसर चेंजेस द प्लांट, ही डज नॉट मूव ऑन द सेम प्लांट. शॉर्ट रन में वो मूव करेगा सेम प्लांट पे, बट लॉन्ग रन में ही विल शिफ्ट द प्लांट. लॉन्ग रन में ही विल शिफ्ट द प्लांट. अब ध्यान देना, सिमिलर लॉजिक के लिए यही एग्जांपल को मैं आगे लेता हूं, बट ये आपने आगे वाला लिखा नहीं तो भी चलेगा, जस्ट समझने के लिए. अच्छा, आगे आप अब आपने OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और आपने बोला सर हम SSC 5 लगाएंगे. क्यों? SSC 5 पे OQ2 आउटपुट की कॉस्ट कम रहेगी. अब मुझे बोलो SSC 5 हाँ, आप OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो यूजिंग SSC 5, ये हमारे फर्स्ट डिसीजन मिला हमें. मुझे बोलो SSC 5 टू प्रोड्यूस OQ आउटपुट अंडर यूटिलाइज्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है या फुल यूटिलाइज्ड है? टाइप द आंसर. If you are producing OQ output on SSC 5, that is point C, तो मुझे बोलो वो कहां पे, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है? वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, हम अगर उसको फुल यूटिलाइज करने जाएंगे, किसी प्लांट को फुल यूटिलाइज करने जाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है हमारी, क्योंकि देयर इज अनदर ऑप्शन, वो हम अवेल करके हम कॉस्ट कम कर सकते हैं. अगर लॉन्ग रन में किसी प्लांट को हम फुल यूटिलाइज करना जाएंगे तो आप वो प्लांट को फुल यूटिलाइज करोगे, बट उससे एक अनदर ऑप्शन होगा हमेशा आपको कि यार अगर मैं दूसरे प्लांट पे शिफ्ट होता हूं तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी. सो डोंट फॉल टू लाइक, आप उस चक्कर में मत पड़ो कि फुल यूटिलाइज करना है. ठीक है, अब देखो, आप बोलते हो सर ये अंडर यूटिलाइज्ड है, राइट? सो आप बोलते हो हम सी से इस प्लांट को हम फुल यूटिलाइज करेंगे, एंड यू डिसाइड टू मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी. Obviously, right, output will increase, per unit cost will also decrease. Output will increase, OQ2 से ज्यादा आउटपुट होगा, एंड पर यूनिट कॉस्ट वहां पे CQ3 यहाँ पे कम रहेगी, बिकॉज वो लोएस्ट पॉइंट है. यू आर हैप्पी. व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग SSC 5 ऑप्टिमली एंड यू आर प्रोड्यूसिंग OQ3 आउटपुट. आप बहुत हैप्पी हो. Why? Because according to you, you are producing OQ3 output. सुकन्या, your hand is raised. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पार्क मैसेज करके रखो यहाँ पे. ठीक है, you are producing OQ3 output using SSC 5 optimally. You are very happy. मैं आपको बोलता हूँ there is another option. There is another option. SSC 6. This is another point E. मैं आपको बोल रहा हूं अरे यू आर वेरी हैप्पी. मैं बोलता हूं क्यों? बोल रहे आप मैं SSC 5 प्लांट यूज कर रहा हूं. मैंने बोला अच्छी बात है. वो बोलता है कि वो ऑप्टिमल यूटिलाइज है, मतलब मैं मिनिमम पॉइंट पे काम कर रहा हूं, OQ3 आउटपुट यूजिंग SSC 5. डी पॉइंट पे मैं काम कर रहा हूं, SSC 5 के लोएस्ट पॉइंट पे काम कर रहा हूं सर. मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, बट उसके साथ मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास दूसरा प्लांट है. बोलता है कौन सा? हम दोनों सेम ही प्रोड्यूसर है, सेम ही कर रहे हैं. बोले कौन सा? मेरे पास SSC 6 है, सेम आउटपुट मुझे कम कॉस्ट में मिल रहा है, सेम आउटपुट मुझे कम कॉस्ट में मिल रहा है. सो मैं बोल रहा हूं इस प्रोड्यूसर के पास, if he has to produce OQ3 output, he has a two options: move from C to D, same plant use करे, उसको full utilize करे, या move from point C to E to the another curve. What do you think? This is again option 1, this is again option 2. मुझे बोलो क्या करेगा वो? What you think? Please tell me. अब वो क्या करेगा? अगेन उसके पास दो ऑप्शंस है. He will again go for option 2. Why? अगर ऑप्शन 1, अगर आप SSC 5 को फुल यूटिलाइज करने जाता है, OQ3 की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट DQ3 रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट DQ3 रहेगी. एंड वही अगर मैं SSC 6 यूज करके करता हूं, EQ3 मेरी कॉस्ट रहेगी पर यूनिट. माय कॉस्ट विल बी लेस इफ आई यूज which plant? SSC 6. So in the long run, producer does not move on the same curve. He actually shifts the curve. He actually shifts the curve. यहां पे क्लियर है या नहीं है? ये yes or no? लॉन्ग रन में
Producer will not try to use the given plant optimally, however he will try to shift to the new plant. ठीक है, आगे नेक्स्ट. अब अनदर एग्जांपल. आप बोलोगे सर आपने ये क्या लगा के रखा है, ये समझ में आ गया ना, तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर मुझे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा. एग्जांपल. ठीक है, आई डोंट नो. लेट मी थिंक, मुझे कैसे समझाना है उसको. ये अपर पोर्शन निकालना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है. ये एकदम परफेक्ट होता है. ये डाउनवर्ड वाला है ना, अपवर्ड वाला निकालना बहुत सोचना पड़ता है. यू आर प्रोड्यूसिंग OQ7 आउटपुट. मैंने कुछ भी वैल्यू ली है. यू आर ऑन ए पॉइंट ए. ठीक है, OQ7 आउटपुट. दिस इज SSC7 सपोज एंड दिस इज SSC6, उसके पहले वाली. ठीक है, ध्यान देना. You are producing OQ7 output. Obviously, you will select SSC7 over SSC6 because अगर वही output अगर आप SSC6 पे करते हो तो you have to pay more. Your cost per unit is more. So SSC7 is a better. अब मुझे बोलो OQ7 output is being produced. OQ7 output is being produced on SSC7. SSC7 is overutilized, underutilized or fully utilized. SSC7 to produce OQ7. इट इज अंडर यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज क्या है. SSC7 को ऑब्जर्व करो, आपकी एक्टिविटी लेवल पॉइंट ए है एंड आपका मिनिमम पॉइंट कहां पे, नीचे है. तो व्हाट यू थिंक, यू आर अंडर यूटिलाइजिंग और यूटिलाइज्ड. SSC7 is being what, अंडर यूटिलाइज, ओवर यूटिलाइज और फुल यूटिलाइज. टाइप योर आंसर. गलत है तो गलत है, क्या उसमें डरना है. चलो करो टाइप जल्दी, एवरीवन. आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस, जल्दी करो एवरीवन. SSC7 कहां पे, ओवर यूटिलाइज. व्हाई, बिकॉज़ SSC7 का मिनिमम पॉइंट ये है. सपोज दिस इज B, this is point B. Minimum point of SSC7 is B and you are working on a upward portion of SSC7. आप upward portion पे काम कर रहे हो. You are working on the upward portion of SSC7. Now my question is, you are overutilizing the SSC7. Now to your surprise, by reducing the output you can reduce the cost. By reducing the output you can reduce the cost. अगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपको वैसे भी कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है. So मैं आपको बोलता हूं, you have one option. आप बोलते हो मैं SSC7 को उसको फुल यूटिलाइज करूंगा, तो यू हैव टू कम डाउन. आपके पास एक ऑप्शन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करो एंड प्रोड्यूस OQ6 आउटपुट. सपोज प्रोड्यूस OQ6 लेस आउटपुट देन द प्रीवियस, बिकॉज यू वांट टू फुल यूटिलाइज ना. SSC7 को फुल यूटिलाइज करना चाहते हो. सो आप बहुत हैप्पी हो, क्यों,
बिकॉज आप एसएससी 7 को फुल यूटिलाइज कर रहे हो, यू आर ऑन ए लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसएससी 7 और आप OQ6 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। मैं बोलता हूँ अरे मैं भी OQ6 से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ बट तेरे से कम कॉस्ट में। बोलता है क्यों? बिकॉज मैं एसएससी 6 पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एसएससी 6 की पर यूनिट कॉस्ट इतनी है एंड एसएससी 7 की पर यूनिट कॉस्ट इतनी है फॉर द सेम आउटपुट। अरे तू वही आउटपुट ज्यादा कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज तू एसएससी 7 पे ही लटका है, आई एम ऑन एसएससी 6 एंड देयरफॉर देयर इज अनदर ऑप्शन। तेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है, मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। So which option will you choose? Will you move on the same curve in the long run or you will shift the curve? You will shift the curve. आप एसएससी 7 से एसएससी 6 पे जंप करोगे। Are you getting my point? ये समझ में आना चाहिए कि in the long run the producer shifts the curves, shifts the plant. He does not use the same plant. Are you getting my point or no? So by shifting the curve, by shifting the plant, he can produce the output, desired output at a lower cost per unit. देखो बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर प्रॉब्लम ये है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। सर प्रॉब्लम ये है कि इवन हम एसएससी 6 पे आते हैं ना, एसएससी 6 भी ओवर यूटिलाइज्ड है बिकॉज एसएससी 6 का मिनिमम पॉइंट डी है, एसएससी 6 भी ओवर यूटिलाइज्ड है। समझ में आ रहा है? सर हम उसको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, हम आउटपुट कम करेंगे, हम सर सी से डी पे जाएंगे। मैं बोलता हूं देयर इज अनदर प्लांट। कुछ ऐसे देयर इज अनदर प्लांट जिसका मिनिमम पॉइंट ये है एंड यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस दैट आउटपुट। ये डी वाला जो आउटपुट है, सपोज दिस इज OQ5 आउटपुट। आप बोलते हो सर मैं एसएससी 6 पे आ गया बट एसएससी 6 के मैं मिनिमम पॉइंट पे नहीं हूं, सर मुझे मिनिमम पॉइंट अचीव करना है। मैं बोलता हूं मिनिमम पॉइंट अचीव करना है तो एसएससी 6 पे पॉइंट सी से डी पे आ जा, OQ6 आउटपुट से OQ5 आउटपुट आ जा, तो यू विल अचीव द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसएससी 6। यू आर यूजिंग एसएससी 6 ऑप्टिमली, फुल्ली। मैं बोल रहा हूँ तेरे पास OQ5 आउटपुट प्रोड्यूस करने का दूसरा एक प्लांट है, उससे छोटा प्लांट है जिससे तेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। सो दिस इज पॉइंट ई। सो या तो पॉइंट सी से डी जाना है या पॉइंट सी से ई आना है। अगेन वो बोलेगा अगर एसएस 6 को फुल यूटिलाइज करने के चक्कर में पड़ूंगा, एसएस 6 को फुल्ली यूटिलाइज करने के चक्कर में पड़ूंगा तो कॉस्ट मेरी इंक्रीज होगी। बिकॉज मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, या तो प्लांट को फुल यूटिलाइज करो या प्लांट शिफ्ट करो, चेंज द गर्ल और चेंज द गर्ल। क्या? इफ यू कैन चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। वो आपने सुना होगा डायलॉग। या तो प्लांट फुल यूटिलाइज करने के चक्कर में पड़ोगे, एक ऑप्शन है फुल यूटिलाइज करो, दूसरा ऑप्शन है चेंज द प्लांट। एंड यू कैन सी it is a better to change the plant in the long run and not to right utilize the plant optimally. समझ में आ रहा है? यहां पे देखो इस डायग्राम में जब आप आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बाय शिफ्टिंग द प्लांट यू कैन इंक्रीज द आउटपुट। यहाँ पे जब आप ऊपर ओवर यूटिलाइज में है, आपकी कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीज होगी। जब आप अंडर यूटिलाइज है ना, जब आप अंडर यूटिलाइज है, आउटपुट इंक्रीज करो, प्लांट शिफ्ट करो, योर कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज, आउटपुट विल इंक्रीज एंड कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज। बट अगर आप ओवर यूटिलाइज पोजीशन में हो, आप अपर पोर्शन में हो, यहाँ पे भी मींस इफ यू इंक्रीज आउटपुट योर कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। सो आपको क्या करना होगा? आउटपुट कम करना होगा। बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट योर कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस। चेंज द प्लांट, नीचे आ जाओ, नीचे वाले प्लांट पे आ जाओ, योर आउटपुट विल डिक्रीज, योर पर यूनिट कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज। सो आपके पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था सेम प्लांट को फुल यूटिलाइज किया जाए
या प्लांट शिफ्ट किया जाए। हमने चेक किया कि हम अगर प्लांट फुल्ली यूटिलाइज करते हैं तो उससे एक बेटर प्लान भी होता है जो हमें लोअर कॉस्ट में सेम आउटपुट देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर ये समझ में आ गया तो अब लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व समझ में आएगी। इस डायग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूं एंड आई विल टेल यू माय लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। अब आप कहां पे हो? OQ3 आउटपुट पे हो। OQ3 आउटपुट यूजिंग SSC6, यूजिंग SS6, ठीक है, यूजिंग SSC6। देन अब आपके पास सपोज, कैसे समझाओ, ठीक है, लेट इट बी। अब मैं डायरेक्टली मॉड्यूल के डायग्राम पे आता हूं, ठीक है, मॉड्यूल के डायग्राम पे आता हूं। यहाँ कहां पे रहेगा? यस, इफ आई जॉइन दिस पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ई, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, टेंजेंसी पॉइंट, आई डोंट नो हाउ कैन आई ड्रॉ इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेसिकली। If I draw these points, if I draw these points, point E, point C and point A, अगर इन पॉइंट्स को मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं, आई कैन नॉट ड्रॉ एग्जैक्टली बिकॉज ये डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस पॉइंट्स, आई विल गेट ए कर्व, दैट कर्व इज कॉल्ड एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्यों? ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब मैं मॉड्यूल के डायग्राम पे आता हूं, वो थोड़ा इजी है समझने के लिए। दिस इज द डायग्राम, ध्यान देना मैं समझा रहा हूं। दिस इज प्लांट 1, प्लांट 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखो नाउ आगे, यू आर प्रोड्यूसिंग दिस आउटपुट ऑन प्लांट 1, ये आउटपुट आप प्लांट 1 पे प्रोड्यूस कर रहे हो। देन अगर आप इस चक्कर में पड़ते हो, मिनिमम पॉइंट पे आने का ट्राई करते हो SSC1 पे, तो देयर विल बी अनदर कर्व जो आपको वही आउटपुट कम प्राइस में निकाल के देगा, वही आउटपुट आपको कम प्राइस में। सो डोंट मूव ऑन द कर्व, शिफ्ट द कर्व, आप दूसरे कर्व पे आ जाओ। अगर आप इसके चक्कर में पड़ते हो इसकी मिनिमम पे, तो वही आउटपुट आपको दूसरे कर्व रहेगी जो मिनिमम में लेके देगी। सो यू आर शिफ्टिंग द कर्व्स, आप एक एक कर्व शिफ्ट कर रहे हो। ऐसे जो कर्व शिफ्ट कर रहे हो, अगर उनके पॉइंट्स को आप अटैच करते हो ना, उनको एक टेंजेंसी पॉइंट डालते हो ना, सो दिस कर्व, ये जो कर्व है, दिस कर्व which is tangent to all SSCs is long run average cost curve. It is long run average cost curve. So what is a long run average cost curve? कोई भी आउटपुट ले लो, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, हर आउटपुट की एक खुद की मिनिमम कॉस्ट है। आपको ये वाला आउटपुट चाहिए तो उसकी ये कर्व है, आपको ये वाला आउटपुट चाहिए, इसकी ये कर्व है। एन आउटपुट चाहिए, इसकी भी एक कोई ऐसे कर्व रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको वी आउटपुट चाहिए, इसकी ये है। क्यू आउटपुट चाहिए, इसकी ये है। अगर आपको ये वाला आउटपुट चाहिए, इसकी ये है। अगर आपको ये आउटपुट चाहिए, इसकी ये है। अगर आपको ये वाला आउटपुट चाहिए तो उसकी ये है। ईच आउटपुट, मैंने अभी तक क्या बोला था, देयर आर मिलियंस ऑफ द आउटपुट्स, देयर आर मिलियंस ऑफ द आउटपुट्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम। सर मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, आई वांट टू प्रोड्यूस दिस मच, तो मैं बोलता हूं इसकी एक कॉस्ट कर्व है ये वाली, इस ये वाले कर्व उठा SSC1, ठीक है, ये तुझे मिनिमम कॉस्ट देगी इस आउटपुट की। आप बोलते हो सर मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए,
मैं बोलता हूं डोंट मूव ऑन दिस कर्व, क्या कर, एक दूसरी कर्व उठा, दूसरी प्लांट पे आ जा, ये वाले प्लांट पे। सो आपने शिफ्ट की कर्व, सो दिस इज ओ ए आउटपुट, ओ ए आउटपुट आपने एसएससी 1 पे प्रोड्यूस किया, बिकॉज अगर ओ ए आउटपुट आप एसएससी 2 पे प्रोड्यूस करते हो ना, एसएससी 2 पे प्रोड्यूस करते हो तो यू कैन फाइंड आपकी कॉस्ट ज्यादा है एसएससी 2 पे। सो एसएससी 1 इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ओए आउटपुट, बट अगर आपको ओबी आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आप एसएससी 1 को भी यूज करके कर सकते हो, एसएससी 2 को भी यूज करके कर सकते हो, बट ओबी आउटपुट इज मोर अफोर्डेबल, मोस्ट इफिशियंट और एट ए लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एसएससी 2 पे, इसलिए एसएससी 2। सर हमें ओसी 3 आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कितना ओसी 3, तो या तो आप एसएससी 2 को यूज करके कर सकते हो, एसएससी 1 को भी यूज करके कर सकते हो, बट एसएससी 1 एंड एसएससी 2 में एसएससी 1 की कॉस्ट ज्यादा होगी देन एसएससी 2, तो आप एसएससी 1 को प्लान से निकाल दोगे, आप एसएससी 2 बोलोगे। मैं बोलता हूं एक दूसरी भी कर्व है, एक दूसरी भी कर्व है, मैं बोलता हूं ये वाली कर्व है एसएससी 3। सो ओसी आउटपुट आप एसएससी 3 पे प्रोड्यूस कर सकते हो, एसएससी 2 पे कर सकते हो, एसएससी 1 पे कर सकते हो, विच इज बेटर, एसएससी 3। आप बोलते हो सर हमें डी आउटपुट चाहिए, डी, मैं बोलता हूँ डी आउटपुट आप एसएससी 3 पे कर सकते हो, एसएससी 2 पे भी कर सकते हो, एंड कहाँ पे एसएससी 1 पे भी कर सकते हो, बट एसएससी 1 में सबसे ज्यादा कॉस्ट होगी, निकाल दो। एसएससी 2 में भी कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसएससी 3, आप बोल रहे हो हम एसएससी 3 पे करते हैं, मैं बोलता हूँ एसएससी 3 से भी एक बेटर प्लांट है, ये वाला एसएससी 4। तो देखो एस ओडी आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग एसएससी 3, एसएससी 4, एसएससी 3, एसएससी 2 एंड एसएससी 1। आप सब, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां पे मिल रही है आपको, एसएससी 4 पे। सो आप क्या कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप क्या कर रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। आई एम मूविंग फ्रॉम प्लांट 1 टू प्लांट 2, प्लांट 2 टू 3 4 5 लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर एवरी आउटपुट ओए के लिए खुद का प्लांट है जहां पे वो मिनिमम कॉस्ट पे बनेगा, ओबी के लिए खुद का प्लांट है जहां पे उसकी कॉस्ट मिनिमम रहेगी, ओसी के लिए खुद का प्लांट है, राइट, एसएससी 3 जहां पे वो मिनिमम कॉस्ट में, ओसी हम अलग अलग इसमें भी कर सकते हैं, देखो ओसी एसएससी 1 एसएससी 2, लाइक ओडी देखो, एसएससी 1 पे भी कर सकते हैं, एसएससी 2 पे भी कर सकते हैं, एसएससी 3 पे भी कर सकते हैं, एसएससी 4 पे, बट उसका ऐसा प्लान जो सबसे कम कॉस्ट देगा, एसएससी 4। सो कैन आई से फॉर एवरी वन आउटपुट, कोई भी आउटपुट हो, सर हमें ये वाला आउटपुट चाहिए ओई, आप बोलोगे सर एसएससी 4 पे भी बनता है, एसएससी 3 पे भी बनता है, एसएससी 2 पे भी बनता है, एंड सर एसएससी 1 पे भी बनेगा, अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो ओई आउटपुट चारों इस पे बन रहा है, बट चारों इसमें से एसएससी 4 इज बेटर। मैं बोलता हूं उससे भी बेटर है, उससे भी बेटर है, आप बोल रहे सर कैसे, मैं बोल रहा हूँ देयर इज अनदर प्लान कर्व। मैं बोला दिस डायग्राम इज वेरी क्रिटिकल, ये इतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है, निकालना बहुत मुश्किल है, दिस एसएससी 5। तो आपके पास अब ओडी आउटपुट बनाने के, ओई आउटपुट बनाने के 5 ऑप्शन है, वन, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, 5 प्लांट यूज कर सकते हो, सबसे बेटर प्लान कौन सा है, 5। सो फॉर एवरी आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, लिख लेना, एवरी आउटपुट, एवरी आउटपुट can be produced, can be produced at least possible cost। हर आउटपुट की अपनी लोएस्ट कॉस्ट हो सकती है, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट हो सकती है, पॉसिबल कॉस्ट, एंड that is represented by, that is represented by a plant having its
short run average cost. Like example, like OA output OA plant एंड उसकी एसएससी. ओए आउटपुट के लिए एसएससी 1 चाहिए, प्लांट 1. ओबी आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, आई कैन प्रोड्यूस विथ प्लांट 1 एज वेल एज प्लांट 2, बट मैं प्लांट 2 सिलेक्ट करूंगा और एसएससी 2 उसकी, बिकॉज ओबी कैन बी प्रोड्यूस विथ ए लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट यूजिंग एसएससी 2. ओसी आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग थर्ड प्लांट एसएससी 3. like OD output can be produced using fourth plant SSC 4. OE output can be produced using fifth plant, right, SSC 5. So मैं वही समझाना चाहता हूं कि each output has its own plant. If I can divide this output in millions of the outputs, and for each output has own cost curve, own plant, so there will be millions of the SSCs, millions of the outputs represented by millions of the SSCs. And अगर ऐसे millions points को हम join करना चाहते हैं like this, अगर मैं ऐसे करते रहूं I will get a cost curve like this. So OA output की cost इतनी है, OB output की cost इतनी है, OC output की cost इतनी है, OD output की cost इतनी है, OE output की cost इतनी है, इसकी इतनी रहेगी, इसकी इतनी रहेगी, इसकी इतनी रहेगी, इसकी इतनी रहेगी. फिर कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, फिर कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा लाइक दैट. और यहाँ पे जो लोएस्ट कॉस्ट है ना, यहाँ पे एक ऐसी कर्व मिलेगी आपको, एक कर्व कुछ ऐसे मिलेगी. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप मिनिमम पॉइंट पे रहोगे, एसएससी पे भी मिनिमम पॉइंट पे रहोगे, एंड ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करके येलो जो कर्व ड्रॉ की, येलो कर्व, दिस इज LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. सो दी एक ऐसा प्लांट रहेगा, SSCs are called as plant curve, short run average cost curve is also called as plant curves because they represent a plant. So इतने सारे millions of the outputs है, millions of the outputs है, each output is represented by one single SSC, millions of the SSCs, millions of the outputs, millions of the SSCs. अगर मैं उनको ऐसे उनके पॉइंट्स को टेंजेंसी डाल देता हूं तो आई विल गेट ए कर्व जिसका नाम रहेगा LAC, long run average cost. Between those millions of the combinations, there will be one combination. There will be one combination जहां पे the LAC is a tangent to lowest point of SSC. देखो यहां पे आप ध्यान देना, everyone, ये SSC 1 का लोएस्ट पॉइंट कहां पे, यहां पे SSC 1 का लोएस्ट पॉइंट ये था. LAC येलो कर लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट नहीं कर रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन पे टेंजेंट कर रही है. SSC 2 का लोएस्ट पॉइंट ये है. My yellow curve is not is tangent to minimum point of SSC 2. It is tangent to downward sloping portion of SSC 2. यहाँ पे देखो SSC 3 का लोएस्ट पॉइंट ये है कुछ, तो SSC 3 का लोएस्ट पॉइंट आगे कहाँ पे, but my LAC yellow curve is tangent to downward sloping portion of SSC. SSC 4 का लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे my yellow curve LAC is a tangent to downward sloping portion. My SSC 5 का lowest point ये है. Are you getting my point? It is LAC is tangent to downward sloping like that. But एक curve ऐसी रहेगी जहां पे my LAC will be tangent to the lowest portion. जब हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, जब हम LAC के डाउनवर्ड आ रहे हैं, मतलब हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, when my LAC is a downward, LAC yellow curve is a downward, it is tangent to downward portion of SSC. When my LAC is downward, देखो
ये टेंजेंट यहाँ पे, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे। एसएससी 4 का मिनिमम पॉइंट बी है बट टेंजेंट ए पॉइंट पे। एसएससी 5 का मिनिमम पॉइंट डी है, मिनिमम पॉइंट डी है बट टेंजेंट सी पॉइंट पे। एसएससी 6 का मिनिमम पॉइंट कुछ ये है, ये वाला ग्रीन में दिखा है वो, टेंजेंट ई पे। सो व्हेन my long run average cost curve is a decreasing, my long run average cost curve is decreasing, it means it will be tangent to decreasing portion of SACs. When my long run cost curve is increasing, जब वो increase होती रहेगी, it will be tangent to the portion of increasing portion of the SACs. जब खुद LAC decrease होती है, it is tangent to decreasing portion of SACs. जब खुद LAC increase होती है, it is tangent to increasing portion of your SACs. इसका मतलब up to this output, suppose this is OM output, up to OM output या OQ output, जो भी बोलना है बोलो, my LAC is increasing. Why? Sorry, my LAC is decreasing. Why? Because जो भी मैं प्लांट्स यूज कर रहा था तब तक ऑल ओवर अंडर यूटिलाइज्ड, एंड जब मैं उनको फुल यूटिलाइज करने का सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है इससे भी और प्लांट है जो मुझे कम कॉस्ट में देगा, मैं और नीचे आ गया। फिर उस प्लांट को जब मैं फुल यूटिलाइज करने का सोचता हूँ, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करने का सोचता हूँ, मुझे लगता है अरे उससे भी एक कम कॉस्ट वाला प्लांट है, मैं और नीचे आ जाता हूँ। ऐसे करते 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 मैं नीचे आके ओएम आउटपुट का जो लोएस्ट कॉस्ट है वो है। सो इतने सारे आउटपुट्स में, मिलियंस ऑफ आउटपुट में ओएम आउटपुट ऐसा आउटपुट है जो लोएस्ट कॉस्ट पे बन रहा है। एंड इसके आगे की हिस्ट्री क्या है देखो, इसके आगे यू आर राइट टेंजेंट टू अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब इसके आगे की जो भी कर्व है, ओएम आउटपुट के आगे जो भी एसएससीज है, ऑल आर ओवर यूटिलाइज। ओएम तक के एसएससीज आर अंडर यूटिलाइज, इसलिए हम उनको और यूटिलाइज करना चाहते थे। जब हम यूटिलाइज कर रहे हमें समझ में आता है यार बेटर देन फुल यूटिलाइजिंग इट, शिफ्ट टू द न्यू प्लांट, हम और नीचे आ गए। उसको फुल यूटिलाइज करने की जगह शिफ्ट टू द न्यू प्लांट और नीचे आ गए, शिफ्ट टू द न्यू प्लांट और नीचे आ गए, शिफ्ट टू द न्यू प्लांट और नीचे आ गए। हम नीचे आ रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहे, कॉस्ट अपने आप डिक्रीज हो रही है बाय शिफ्टिंग टू द न्यू प्लांट। ऊपर, जब हम ऊपर है तो क्या होता है, ध्यान देना, जब हम ऊपर है द प्लांट्स आर ओवर यूटिलाइज्ड, जब हम उनको फुल यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें नीचे आना पड़ेगा, हमें आउटपुट कम करना पड़ेगा तो प्लांट फुल यूटिलाइज होगा। जब हम उस प्लांट को फुल यूटिलाइज करना चाहते हैं, हमें समझ में आता है यार हम आउटपुट कम कर रहे हैं एंड वो कम वाला आउटपुट छोटे प्लांट पे कम कॉस्ट में होगा, तो आप नीचे जंप मारोगे, राइट। ऐसे आप यहाँ पे आगे जा रहे हो, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, जब आप डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन पे हो, यू आर इंक्रीजिंग द आउटपुट बाय शिफ्टिंग टू द हायर प्लांट, जब आप ऊपर वाले पोर्शन पे हो, यू विल डिक्रीज द आउटपुट बाय शिफ्टिंग टू द लोअर कैपेसिटी प्लांट। बिकॉज जब आप ऑप्टिमम आउटपुट सोचते हो, जब आप ऊपर वाले पोर्शन पे हो, आपका ऑप्टिमम पॉइंट नीचे है, तो आपको आउटपुट कम करना पड़ेगा। शॉर्ट रन में जब आप आउटपुट कम करने जाते हो तो आपको लगता है इस आउटपुट की एक दूसरी भी प्लांट है जो हमें कम इसमें देगी, तो हम नीचे आएंगे, समझा। फिर अरे इसको भी, इन नीचे वाले प्लांट को, जो नीचे वाला प्लांट लिया उसको फुल यूटिलाइज करेंगे, तो उसको और नीचे आने का ट्राई करेंगे। अरे उसके नीचे भी एक ऐसा प्लांट है जो हमें वही आउटपुट कम इसमें देंगे, तो हम नीचे वाले प्लांट पे जंप मारेंगे। हम यहाँ पे आगे वाले प्लांट पे जंप मारे और वहां पे नीचे वाले प्लांट पे जंप मारे। ऐसे करते 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 एक ऐसा प्लांट मिलेगा जहां पे योर LAC इज मिनिमम, एट द सेम टाइम SSC इज ऑल्सो मिनिमम। मतलब ये वाला प्लांट जो रहेगा, वट एवर इट इज अ प्लांट, कोई भी रहेगा, इसका मिनिमम पॉइंट इज टेंजेंट टू मिनिमम पॉइंट ऑफ योर LAC। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, LAC इज अ टेंजेंट टू डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, LAC इज अ टेंजेंट टू अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ SSCs। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, LAC इज अ टेंजेंट टू द लोएस्ट पोर्शन ऑफ SSC। एक ऐसी कर्व रहेगी, एक ऐसा प्लांट रहेगा जो अगर उस पे प्रोड्यूस करते हो तो लॉन्ग रन की वो सबसे
लोएस्ट कॉस्ट रहेगी, लॉन्ग रन की वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट रहेगी, एंड वो प्लांट फुल यूटिलाइज होगा, वो प्लांट फुल यूटिलाइज भी होगा। इसके पहले वाले प्लांट्स भले ही कॉस्ट कम दे रहे बट फुल यूटिलाइज नहीं, इसके बाद वाले प्लांट भले ही कॉस्ट कम दे रहे बट वो ओवर यूटिलाइज्ड है। ओएम आउटपुट के पहले के ओएम आउटपुट के पहले के प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट, एसएससीज, प्लांट कर्व्स, एसएससीज आर कॉल्ड एज प्लांट कर्व्स, आर मे बी गिवन यू लोएस्ट गिवन आउटपुट। ओएम आउटपुट के पहले के कोई भी आउटपुट की जो कॉस्ट कर्व है दैट इज गिविंग इट लोएस्ट कॉस्ट, बट वो अंडर यूटिलाइज्ड है। ओएम आउटपुट के बाद के कोई भी आउटपुट की कॉस्ट कर्व देखो, दैट इज गिविंग द लोएस्ट कॉस्ट, उस आउटपुट की वो लोएस्ट कॉस्ट दे रहा है। हर आउटपुट की अपनी अपनी लोएस्ट कॉस्ट है, बट या तो अंडर यूटिलाइज्ड है या तो ओवर यूटिलाइज्ड है। ओएम आउटपुट ऐसा आउटपुट है जिसकी कॉस्ट भी लोएस्ट है, कॉस्ट कर्व वो लोएस्ट है उस आउटपुट के लिए, एंड वो फुल यूटिलाइज्ड है, वो मिनिमम पॉइंट है। सो प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट, right, when producer is in equilibrium when the minimum point of SSC is tangent to minimum point of LSC. So क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, डायग्राम निकालना मुश्किल है, मैं वही आपको बोल रहा हूं, समझाना इजी है बट निकालना मुश्किल है। इसका मिनिमम पॉइंट सपोज ये है और हम टेंजेंट यहां पे, इसका मिनिमम पॉइंट कुछ ये है, हम टेंजेंट यहां पे, सो ऐसे टेंजेंट हो रहा है, टेंजेंट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कैसे निकालना, ये वाला पोर्शन निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये वाला पोर्शन बहुत गंदा होता है, अपवर्ड वाला। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो ठीक से होता नहीं, लाइक दिस समथिंग, आई डोंट नो, निकालना बहुत मुश्किल है। ये लोएस्ट पॉइंट है, टेंजेंट कहां पे ऊपर है, लोएस्ट पॉइंट ये है, टेंजेंट कहां पे ऊपर है। When LAC is a downward sloping, it is tangent to downward sloping portion of SSC. मतलब SSCs are underutilized. When LAC is upward sloping, it is tangent to upward sloping portion of SSCs. मतलब SSCs there are overutilized. एक ऐसी कर्व मिलेगी, कब बशी जैसे, कब बशी जैसे, वो बराबर बीच में रखोगे तो खड़ी हो जाएगी, लाइक दिस इज बशी और ये कप है बराबर। अगर कप कहां पे बशी के इधर उधर रखोगे तो गिर जाएगा, बट अगर बराबर बीच में रखोगे तो वो स्टैंड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, इन दिस डायग्राम, जो मॉड्यूल में जो डायग्राम दिए देखो अब यहाँ पे, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। इस डायग्राम में लिखा है, इस डायग्राम में लिखा है, देखो, देयर आर मिलियंस ऑफ SSCs, SSC1, SSC2, SSC3, 4, 5, 6, 7, मिलियंस ऑफ SSCs है, मिलियंस ऑफ आउटपुट है, हर आउटपुट की अपनी खुद की एक लोएस्ट कॉस्ट है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय SSC। हर आउटपुट, कोई भी आउटपुट हो, मिनिमम कॉस्ट पे बन सकता है, ऑब्वियसली हर आउटपुट की अपनी अपनी मिनिमम कॉस्ट रहेगी, हर आउटपुट की अपनी अपनी मिनिमम कॉस्ट रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट हर कोई अपने मिनिमम कॉस्ट पे काम कर सकता है, दैट आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस एट ए मिनिमम कॉस्ट। ऐसे हर आउटपुट की मिनिमम कॉस्ट को अगर हम टेंजेंसी पॉइंट या कर्व निकालते हैं, हर आउटपुट की लोएस्ट कॉस्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिलती है, एंड दिस कर्व इनवलप्स, बराबर ऐसे सबको कवर करती है। LAC इनवलप्स ऑल SSCs, therefore LAC is called as, वो सपोर्ट करती है सबको, इसलिए इसको बोला जाता है इनवलप करती है, इसलिए उसको बोला जाता है इनवलप कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड एज इनवलप कर्व। सो जब ये LAC डिक्रीज हो रही है, ये वाला पोर्शन, जब LAC डिक्रीज हो रही है, it is tangent to downward sloping portion, it is tangent to downward sloping portion of given SSC। मतलब SSC1, SSC2, SSC3 are underutilized, भले ही उस आउटपुट की वो लो कॉस्ट है, उस आउटपुट की वो लो कॉस्ट है, बट वो प्लांट्स अंडरयूटिलाइज्ड है। जब ये अपवर्ड स्लोपिंग है, जब LAC अपवर्ड स्लोपिंग है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही लॉन्ग रन में, इट इज टेंजेंट टू अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ SSCs। जब वो खुद अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी
वो एसएससी के अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को टेंजेंट करेगी। मतलब एसएससी 5, एसएससी 6 and ACC 7 are overutilized plant. 1, 2, 3 underutilized plant, 5, 6, 7 overutilized plant. बट एक ऐसी कर्व दिखेगी एसएससी 4, ये वाली, एंड यहाँ पे मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज टेंजेंट टू मिनिमम पोर्शन, और यू कैन टू योर सरप्राइज यू कैन फाइंड वो एलएसी का भी लोएस्ट पोर्शन है, एंड वहां पे जो कर्व है, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ एलएसी इज ए कर्व, एवरी पॉइंट पे एक कर्व रहेगी, हर पॉइंट पे एक कर्व रहेगी लाइक दिस, एवरी पॉइंट पे एक कर्व रहेगी लाइक दिस, हर पॉइंट पे रहेगी। तो ये जो पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट ऑफ एलएसी पे कर्व रहेगी, वो कर्व एसएससी 4 इन दिस डायग्राम, एंड उसका वो लोएस्ट पॉइंट है। सो कैन आई से दिस इज माय एलएसी। सर मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे एक प्लांट रहेगा। सर मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, सर मुझे यहाँ पे एक प्लांट रहेगा। ये वाला आउटपुट चाहिए, यहाँ पे प्लांट रहेगा। ये वाला आउटपुट चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट रहेगा। ये वाला आउटपुट चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट रहेगा। एवरी पॉइंट ऑन एलएसी, एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठाओ, इट इज ए कॉस्ट कर्व। छोटी छोटी कॉस्ट कर्व, मिलियंस ऑफ द कॉस्ट कर्व्स रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू कि एवरी पॉइंट ऑन एलएसी, every point on LAC is a output level. कोई भी पॉइंट उठाओ LAC का, इट इज एन आउटपुट, एंड दैट इज उस आउटपुट का, ये पॉइंट इस आउटपुट का लोएस्ट कॉस्ट है, ये वाला पॉइंट इस आउटपुट का लोएस्ट है, ये वाला पॉइंट इस आउटपुट का लोएस्ट कॉस्ट है, ये वाला पॉइंट इस आउटपुट का लोएस्ट कॉस्ट है, ये वाला पॉइंट इस आउटपुट का लोएस्ट कॉस्ट है। सो दीज आर ऑल पॉसिबल लीस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल द इनपुट, ऑल द आउटपुट। जितने सारे मिलियंस ऑफ द आउटपुट्स है, हर आउटपुट का खुद की लोएस्ट कॉस्ट है। अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलती एलएसी, एंड उसमें अब इतने सारे आउटपुट से हर आउटपुट की अपनी अपनी कॉस्ट है, उसमें से एक कॉस्ट, एक आउटपुट ऐसे रहेगा, वो सब कॉस्ट में उसकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी। सो एलएसी का मिनिमम पॉइंट की बात कर रहा हूं, एंड वहां पे जो प्लांट रहेगा ना, वो टेंजेंट रहेगा मिनिमम पॉइंट पे। सो एलएसी विल टेंजेंट दैट प्लांट, ये जो रहेगा ओएम आउटपुट, उसका जो प्लांट रहेगा दैट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। ओएम आउटपुट का प्लांट फुल्ली यूटिलाइज्ड है, लेस देन ओएम आउटपुट, लेस देन ओएम plants are underutilized, are underutilized. Plants more than OM, output more than OM, plants are overutilized. मतलब हमें दोनों चीजें नहीं मिल रही क्या? प्रोड्यूसर बोलता है मुझे कॉस्ट भी कम रखनी है और यूटिलाइज भी फुल्ली करना है। प्रोड्यूसर क्या सोचता है, मुझे कॉस्ट भी कम रखनी है और यूटिलाइज भी फुल्ली करना है। जब वो नीचे आ रहा है तो वो कॉस्ट कम कर रहा है बट फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बट यूटिलाइज फुल्ली नहीं हो रहा है। बट ये वाला ओएम आउटपुट पे, राइट, इट इज, आप लो ओएम आउटपुट लो कॉस्ट पे भी बन रहा है एंड ऑप्टिमम लेवल पे भी बन रहा है। ओएम आउटपुट यहाँ पे अप टू ओएम आउटपुट, राइट, outputs are produced, outputs are produced at lowest possible cost। कोई भी आउटपुट उसकी लोएस्ट कॉस्ट पे बन सकता है, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, बट पॉसिबल कॉस्ट, बट not at optimum level of the plant, not at optimum level of the plant। क्या बोला मैंने? अप टू ओएम आउटपुट, हर आउटपुट उसके लोएस्ट कॉस्ट पे बन सकता है बट वो ऑप्टिमम लेवल नहीं रहेगी, उस प्लान की ऑप्टिमम लेवल नहीं रहेगी। अप टू ओएम आउटपुट, अप टू ओएम आउटपुट, जो भी आउटपुट है वो उसके खुद के लोएस्ट कॉस्ट,
वो आउटपुट बनाने के बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे, कोई भी आउटपुट बनाने के बहुत सारे प्लांट रहेंगे, उसमें से जो लोएस्ट कॉस्ट वाला हम वो चूज करेंगे। तो एवरी आउटपुट अप टू एम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट ए लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। उसके लिए जो प्लांट लगेगा बट वो प्लांट फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, मतलब लोएस्ट कॉस्ट मिल रही है बट फुल यूटिलाइजेशन नहीं है, लोएस्ट कॉस्ट मिल रही है बट फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। आउटपुट बियॉन्ड ओएम, आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये आउटपुट भी लोएस्ट कॉस्ट पे बन रहे हैं, आर प्रोड्यूस्ड एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, possible cost but not at optimum level, not at optimum level of plant। मतलब आपको दोनों सुख नहीं मिल रहे, ऐसे बोलो। एक सुख है कि सबसे कम कॉस्ट पे बने, दूसरा सुख है कि वो लेवल भी ऑप्टिमम रहे, उस प्लान की ऑप्टिमम लेवल। मतलब हम एक लेवल बना रहे एक प्लान पे, हम हैप्पी है कि यार उस ये आउटपुट की ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, बट यू आर अनहैप्पी बिकॉज वो प्लांट आप अंडरयूटिलाइज कर रहे हो। अप टू ओएम, ओएम के बाद यू आर हैप्पी कि ओएम के बाद जो भी आउटपुट है वो आउटपुट हम अलग अलग प्लांट्स पे बना सकते हैं, बट जिस प्लांट पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोएस्ट कॉस्ट दे रहा है। यू आर हैप्पी कि ये वाला आउटपुट हम लोएस्ट कॉस्ट पे बना रहे हैं और वो जो प्लांट हमने इंस्टॉल किया है वो यूटिलाइज्ड है। आप हैप्पी नहीं, आप बोल रहे हैं वो यूटिलाइज है, मुझे फुल्ली यूटिलाइज चाहिए। एक ही ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पे लाइक ओएम आउटपुट वो भी उसके लिस्ट कॉस्ट पे बन रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ओएम उसके लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बन रहा है, एंड also at optimum level of plan। यहां पे दोनों सीख मिल रहे हैं आपको, दोनों आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं। क्या कि गिवन आउटपुट एट ए लोएस्ट कॉस्ट एंड गिवन आउटपुट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ दैट प्लांट। क्या आपको दो टारगेट कंप्लीट करने हैं, कौन से? जो भी आउटपुट बनाएंगे वो लोएस्ट कॉस्ट पे बनाएंगे, एंड वो लोएस्ट कॉस्ट के लिए जो प्लांट डालेंगे वो ऑप्टिमम प्लांट होना चाहिए, उसके लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अप टू आउटपुट ओएम एक टारगेट अचीव हो रहा था, क्या लोएस्ट कॉस्ट मिल रही थी, बट वो प्लांट है वो लेस अंडर यूटिलाइज था। बियॉन्ड आउटपुट ओएम एक टारगेट अचीव हो रहा है कि वो उसके लोएस्ट कॉस्ट पे बन रहा है, बट उसके लिए जो प्लांट मैंने इंस्टॉल किया है वो ओवर यूटिलाइज्ड है। एक ही ऐसा आउटपुट है इतने सारे आउटपुट्स में विच इज ओएम, जहां पे उसकी खुद की कम कॉस्ट पे वो बन रहा है। जैसे हर आउटपुट खुद के कम कॉस्ट पे बना सकते हैं, वैसे ओएम आउटपुट भी उसके लोएस्ट कॉस्ट पे बना सकते हैं, उसके लिए ये एसएससी है। So this is SSC 10 suppose example। OM output can be produced at a lowest, OM output भी अलग अलग कर्व्स पे बना सकते हो, लाइक 9 पे बना सकते हो, 10 पे 11 पे बना सकते हो, ऐसे अलग अलग कर्व्स पे बना सकते हो। 9 पे बनाओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, 11 पे बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, बट हम OM आउटपुट ऐसे आउटपुट प्लांट पे बना रहे हैं जहां पे उसकी कॉस्ट कम है। एंड दूसरा बात, वो प्लांट फुल यूटिलाइज भी है बिकॉज it is tangent to the lowest, it is tangent to the lowest part of the SSC। So this is called as producers equilibrium, producers optimum level, equilibrium मत बोलो, optimum level in the long run। in the long run if producer is at this level in the long run, at this level he will choose a plant, he will choose a plant जो वो कम कॉस्ट देगा, but those plant will be underutilized। अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे, अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे he will choose a plant which will give him lowest cost, but those plants will be overutilized। अगर प्रोड्यूसर OM लेवल पे, he will choose a plant which will give him lowest cost and even that plant is fully utilized। एक ही प्लांट रहेगा जो फुल यूटिलाइज रहेगा, and this is called as producers optimum level। शॉर्ट रन में भी वो ऑप्टिमल ही है, लॉन्ग रन में भी ऑप्टिमम है। ध्यान देना,
शॉर्ट रन में भी वो ऑप्टिमम है, शॉर्ट रन मतलब एलएसी पे भी ऑप्टिमम लेवल पे, लोएस्ट पॉइंट पे, एंड लॉन्ग रन में भी वो ऑप्टिमम लेवल पे। ऐसा ऐसी सिचुएशन इज अ ऑप्टिमम सिचुएशन। यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर एलएसी का लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एसएससी का लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, लेट मी चेक, एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क मी। इसलिए देयर वर सम प्लांट्स, ध्यान देना, देयर वर 7 प्लांट्स गिवन इन द डायग्राम। इसलिए मैंने बोला SSC1, SSC2, SSC3 आर underutilized plant, 5, 6 and 7 are overutilized plant, SSC4 is optimal utilized plant, and OQ output is optimum output which is produced at optimum level. OM output is not optimum output because it is produced at underutilized level. ON output is not optimum output because it is produced at underutilized level. OV output is not optimum output because it is produced at underutilized level. OW output is also not a optimum output because it is produced at overutilized level. OQ output ऐसा output है जो optimum level पे produce हो रहा है, ठीक है, in the short run as well. So जहाँ पे LSC का minimum point and SSC का minimum point एक दूसरे के साथ tangent करेंगे, वो point आपका क्या रहेगा, optimum point रहेगा। किसी का डाउट है इसमें? ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं, कल 1 घंटे में आई विल ऑल्सो गो थ्रू द थेरीज एंड मैं इसका फॉर्मूला वगैरह लिख के दूंगा एंड देन ये हमारा कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड कि आज खत्म हो जाए बट कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आने से मतलब है, बट गो थ्रू द थेरी। आज एक बार थेरी से जाओ, यहाँ पे 1-2 पेजेस की थेरी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ यू शेप्ड ये मत पढ़ना, ये मैं कल समझाऊंगा, यहां तक पढ़ो। ठीक है, चलो आज के लिए ठीक है, किसी के डाउट से तो आई विल टेक दोस डाउट्स। ठीक है, इन द लॉन्ग रन प्रोड्यूसर शिफ्ट्स द कर्व एंड नॉट मूव्स ऑन द सेम कर्व। शिफ्ट करते 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 ऐसे कर्व पे वो आएगा जहां पे वो कर्व ऑप्टिमम भी होगी एंड लोएस्ट कॉस्ट भी रहेगी, उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी हर कर्व के लिए अनदर ऑप्शन है इफ यू हैव टू प्रोड्यूस मोर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो OQ आउटपुट ऐसा आउटपुट है पूरे आउटपुट में जो सबसे कम कॉस्ट में बन रहा है। सो प्रोड्यूसर शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग OQ आउटपुट because it is lowest cost output in the long run. ठीक है, should focus, but everything depends on the profit. If he gets more profit below OQ level, he will produce that. But तब हम उसको बोलेंगे यार तू ऑप्टिमम नहीं है। अगर OQ लेवल से कम आउटपुट प्रोड्यूस करके उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू कर्स नहीं है, OQ लेवल पे वो ऑप्टिमम रहेगा, कॉस्ट कम रहेगी सबसे, बट कॉस्ट कम डज नॉट मीन प्रॉफिट ज्यादा। अगर OQ लेवल से कम प्रोड्यूस करके भी उसका प्रॉफिट मैक्सिमम रह सकता है तो मैं उसको बोलता हूं भाई तेरा प्रॉफिट ज्यादा है बट तू ऑप्टिमम नहीं है। OQ लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस करके अगर उसका हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है मैं उसको बोलूंगा भाई तेरा प्रॉफिट ज्यादा है बट तू ऑप्टिमम नहीं है। एंड ऐसी फर्म जिसका OQ लेवल प्रोड्यूस करके प्रॉफिट भी हाईएस्ट है सब इसमें, तो मैं बोलूंगा भाई तेरा प्रॉफिट भी हाईएस्ट है एंड तू ऑप्टिमम भी है। वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती है जिसका प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है एंड ऑप्टिमम भी होती है। बाकी कोई भी रियल ले लो, या तो वो सब ऑप्टिमम रहेगी या वो ओवर अंडर रहेगी या ओवर यूटिलाइज रहेगी एट देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो मार्केट में और डिस्कस हो जाएगा, बट समझ लेना OQ आउटपुट मतलब क्या। इफ एनी फर्म इज प्रोड्यूसिंग OQ आउटपुट यूजिंग SSC4 इन दिस माय एग्जांपल, ये डायग्राम में फिगर नंबर 12 में, आई विल कॉल दैट फर्म एज अ ऑप्टिमम फर्म। एनी फर्म व्हिच इज प्रोड्यूसिंग लेस देन OQ आउटपुट लाइक OM, ON, OV, I will say it is a suboptimum firm and in the long run. And if any firm which is producing more than OQ output, I will say the firm is right overutilized firm. ठीक है, प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा होगा सर, जब तक हम वो प्रॉफिट निकालने का तरीका नहीं समझते, मार्केट नहीं समझते, तब हमें नहीं पता चलेगा। ये मत बोलना कि हमें OQ आउटपुट ही प्रोड्यूस करना है, नो नॉट एट ऑल। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक नेवर गो टू OQ आउटपुट, दे पहले रुक जाते हैं बिकॉज उनका प्रॉफिट वहां पे ज्यादा होता है।
लाइक मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक फर्म जो रेयरिटी है, वो ऑप्टिमम आउटपुट के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे लॉन्ग रन में। बोलेंगे ऑप्टिमम आउटपुट के चक्कर में पड़ेंगे तो लॉस में जा सकते हैं या प्रॉफिट कम होगा, कोई भी ओक्यू आउटपुट तक नहीं जाएगा एक्सेप्ट परफेक्ट कंपटीशन। वो ओक्यू के पहले रुकेंगे बिकॉज वहां पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सो ये कॉस्ट बोल रहा है, ये हमेशा याद रखना, लोएस्ट कॉस्ट डज नॉट मीन हाईएस्ट प्रॉफिट, ये भी याद रखना। इसलिए ओक्यू आउटपुट आपको हाईएस्ट प्रॉफिट देगा, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। वो हाईएस्ट प्रॉफिट खाली किसको देगा, राइट, परफेक्ट कंपटीशन को देगा। बाकी फर्म्स ओक्यू के पहले रुक जाएंगे एंड दे विल हैप्पी बिकॉज उनका वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। भले ही वो बोलते ठीक है क्या हम ऑप्टिमम नहीं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर हम ऑप्टिमम फर्म की बात करते हैं, इट इज अ फर्म व्हिच इज प्रोड्यूसिंग एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसएससी एज वेल एज एलएसी। ऑप्टिमम फर्म इन द लॉन्ग रन इज अ फर्म व्हिच इज प्रोड्यूसिंग एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसएससी एज वेल एज एलएसी। तो कल हम इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे एंड ये कल हम खत्म कर देंगे, ठीक है? थैंक यू।